Hello viewers, this is Pankaj Goyal. Today we shall talk about clipping operations. Any procedure that identifies those portions of a picture that are either inside or outside of a specified region or space is referred to as the clipping algorithm or simply clipping. The region against which an object is to be clipped is called clipping window. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी प्रोसीजर जिसकी हेल्प से आप किसी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं उसे हम लोग क्लिपिंग एल्गोरिथम कहते हैं, और जिस रीजन के अगेंस्ट आप वो क्रॉपिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड एज क्लिपिंग विंडो. हमारे पास इन टोटल 5 टाइप्स ऑफ क्लिपिंग प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, एंड दोज 5 टाइप्स ऑफ क्लिपिंग प्रोसीजर्स एंड एल्गोरिथम्स आर: नंबर 1, पॉइंट क्लिपिंग. यहां पर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कोई पार्टिकुलर पॉइंट विद इन द क्लिपिंग रीजन आ रहा है या नहीं आ रहा. सेकेंड वन इज लाइन क्लिपिंग. यहां पर अगर लाइन विद इन द क्लिपिंग विंडो आ रही है तो पूरी लाइन शो कर दी जाती है, अदरवाइज हम लाइन को क्रॉप कर देते हैं, उसे कट करके केवल उतना पोर्शन डिस्प्ले करते हैं जितना कि क्लिपिंग विंडो के अंदर आ रहा होता है. नेक्स्ट इज एरिया क्लिपिंग, विच मीन्स दैट कि आपको किसी पॉलीगॉन को क्लिप करना है. इसमें भी हम ये करते हैं कि जितना हिस्सा पॉलीगॉन का क्लिपिंग विंडो के अंदर आता है उसे क्रॉप कर दिया जाता है, रिमेनिंग पोर्शन को जो बाहर होता है क्लिपिंग विंडो से उसे हटा दिया जाता है. नेक्स्ट इज कर्व क्लिपिंग, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि अगर कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स हैं तो जैसे सर्किल है, इलिप्स है, तो उनको किस तरह से क्रॉप या क्लिप किया जाना है. एंड लास्ट इज टेक्स्ट क्लिपिंग, कि अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट डेटा है या टेक्स्ट इमेज है तो उसे हमें किस तरह से क्लिप करना होता है. नाउ वी विल लुक एट ईच वन ऑफ देम वन बाय वन. बिफोर स्टार्टिंग विद दैट वी शैल टॉक अबाउट व्हाट इज अ क्लिपिंग विंडो एंड हाउ वी शुड अंडरस्टैंड इट्स वेरियस पार्ट्स. Now look at this particular picture. Here you can see that there is x-axis and there is y-axis, and this particular point is our origin. Now according to this we had secured and we had designed a window. This is our clipping window. Now we shall understand certain terms related to this particular clipping window, how we talk about it. Say for example, look at a particular thing. This particular window boundary is called as the left window boundary. This one is called as the right window boundary. Now left and right window boundaries are also referred to as vertical boundaries, right? What we call them? Vertical boundaries. Similarly, this particular boundary is called as the bottom boundary, and this particular boundary is called as the top window boundary. The bottom and top window boundaries are also referred to as horizontal boundaries. Next, we shall start talking about certain factors. Say for example, if this is the left window boundary, any point which is towards the clipping window is said to be inside the left window boundary, and the point which is on the on the left hand side of this particular left window boundary is referred to as outside. For example, point J is outside the left window boundary and point A is inside the left window boundary. Now look at this particular point E. If I ask you about E, whether it is inside or outside, you will say that point E is inside the left window boundary. Why? Because it is towards that side of the window boundary which is towards the clipping window. Now we are talking about, suppose that the lower left corner and the upper right corner. हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको कोई रेक्टेंगुलर पोर्शन बताया जाएगा तो हमेशा उसके 2 डायगोनल एंड पॉइंट्स को बताने से उसके बाकी सारे पैरामीटर्स निकाले जा सकते हैं. से फॉर एग्जांपल, अगर इसका लोअर लेफ्ट कॉर्नर 3,4 है और अपर राइट कॉर्नर 10,9 है, तो वी कैन फाइंड आउट ऑल अदर पोर्शंस ऑफ दिस पार्टिकुलर क्लिपिंग विंडो. नाउ से फॉर एग्जांपल, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर आप x की वैल्यू देखेंगे कितनी है. इट इज कमिंग टू बी 3, विच मीन्स दैट xw minimum is equal to 3. Now there is one more thing that you should understand. All along this boundary, means the left window boundary, let there be any point. Suppose there is any point here, उसकी x वैल्यू भी 3 रहेगी. If there is any point here, उसकी भी x वैल्यू 3 रहेगी. If there is any point here, उसकी भी x वैल्यू 3 रहेगी.
तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल अलोंग द लेफ्ट विंडो बाउंड्री द वैल्यू ऑफ x remains 3, means exactly equal to the lower left corner's x value. Therefore, if we want to find any point of intersection on the left window boundary, we can take its x value equal to the xw minimum. Only what we have to find is the y value. Okay. Similarly, look at the right window boundary. All along this right window boundary, the value of x is going to remain equal to 10. If a point is here, its x value is 10. If a point is here, its also x value is 10. If a point is here, its x value is also 10. All along this boundary, which is the right window boundary, the value of x will be equal to 10. If a point lies anywhere, we have to just find its y value. So these two are, means the left boundary and the right boundary, they are which kind of boundaries? They are the vertical boundaries. So remember that if we are talking about intersection with vertical boundaries, we are already given with the value of the x coordinate, है ना. x कोऑर्डिनेट मतलब किसी भी कोऑर्डिनेट या किसी भी इंटरसेक्शन पॉइंट की x वैल्यू हमारे पास होती है. लेफ्ट विंडो बाउंड्री पर वो एक्स डब्ल्यू मिनिमम के बराबर होती है और राइट विंडो बाउंड्री पर वो एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम के बराबर होती है. हमें कौन सा कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता है केवल? दैट इज द y वैल्यू, क्योंकि वो उन दोनों लाइंस के कोरस्पॉन्डिंग वेरी करती है. सिमिलरली अब हम बात करते हैं दोनों हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज के बारे में. लुक एट दिस पार्टिकुलर बाउंड्री. दिस इज द बॉटम बाउंड्री. विद बॉटम विंडो बाउंड्री इफ देयर लाइज एनी पॉइंट, तो उसकी जो y वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? इट्स y वैल्यू विल बी इक्वल टू 4. That this 4 is called as YW minimum. Now if a point falls here, उसकी भी y वैल्यू कितनी है? 4 है. अगर कोई पॉइंट यहां पर है उसकी भी y वैल्यू 4 है. अगर कोई पॉइंट यहां पर है उसकी भी y वैल्यू 4 है. दैट मीन्स ये जो पॉइंट I1 डैश है इसकी जो y कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो भी 4 है और ये जो h डैश है इसकी भी y वैल्यू 4 है. विच वी मीन टू से दैट कि ऑल अलोंग द बॉटम विंडो बाउंड्री किसी भी कोऑर्डिनेट की या किसी भी पॉइंट की जो y वैल्यू होगी दैट विल रिमेन इक्वल टू द y मिनिमम और yw मिनिमम. सिमिलरली थिंक अबाउट द टॉप विंडो बाउंड्री. ऑल अलोंग द टॉप विंडो बाउंड्री इफ ए पॉइंट लाइज हियर its value is equal to y maximum. If a point lies here, its value is also equal to y maximum. If a point lies here, its value is equal to y maximum. Now what is y maximum? This 9 is the y coordinate of this point here. So it means all along this particular line, all the points will have y value equal to 9, or you can say y value equal to y maximum. So on the top window boundary, अगर कोई भी point fall करता है तो आपको उसकी y वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. उसकी y वैल्यू हमेशा 9 के बराबर ही रहेगी. केवल आपको उसकी x कोऑर्डिनेट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके निकालने की जरूरत है. अब इससे हमें क्या पता लगता है कि टॉप विंडो बाउंड्री और बॉटम विंडो बाउंड्री में पर किसी भी पॉइंट की अगर हम बात करें तो उस पॉइंट की y वैल्यू हमें पता होती है. हमें कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है? हमें केवल और केवल उसकी x कोऑर्डिनेट वैल्यू जो है वो पता करनी होती है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस टर्म्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ए पार्टिकुलर बाउंड्री. देखिए किसी भी विंडो बाउंड्री की इसके दो तरफ हो सकती हैं. एक वो तरफ है जिस तरफ क्लिपिंग विंडो है और दूसरी वो तरफ है जिस तरफ जो क्लिपिंग विंडो के अपोजिट साइड है. ठीक है, तो जो जिस साइड की तरफ क्लिपिंग विंडो लाई करती है दैट इज कॉल्ड एज इनसाइड और उसका जो अपोजिट साइड होता है दैट इज कॉल्ड एज आउटसाइड. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लेफ्ट विंडो बाउंड्री है. इस लेफ्ट विंडो बाउंड्री के इस तरफ क्लिपिंग विंडो है और ये उसका अपोजिट साइड है. तो जिस तरफ क्लिपिंग विंडो है उसे हम कहते हैं इनसाइड और जिस तरफ जो उसका अपोजिट साइड है दैट इज कॉल्ड एज आउटसाइड. इसी तरह से आप राइट विंडो बाउंड्री को देखिए. क्लिपिंग विंडो किस तरफ है? क्लिपिंग विंडो इस तरफ है और उसका अपोजिट साइड कौन सा है? वो ये वाला है. तो जिस तरफ क्लिपिंग विंडो है वो राइट विंडो बाउंड्री का इनसाइड है और जिस तरफ उसका अपोजिट साइड है दैट इज कॉल्ड एज कि वो राइट विंडो बाउंड्री का आउटसाइड है. फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट K इज इनसाइड द राइट विंडो बाउंड्री एंड द पॉइंट L इज आउटसाइड द राइट विंडो बाउंड्री. इसी तरह से अगर आप लेफ्ट विंडो बाउंड्री की बात करें तो देखिए पॉइंट J इज आउटसाइड द लेफ्ट विंडो बाउंड्री एंड पॉइंट I इज inside the left window boundary.
यहां पे आप देखिए, ध्यान से देखने वाली बात क्या है, आई हमारा क्लिपिंग विंडो में नहीं है, पर अगर लेफ्ट विंडो बाउंड्री के टर्म्स में हमें बात करनी पड़ेगी तो हमें बोलना पड़ेगा कि आई कहां है, इट इज इनसाइड द लेफ्ट विंडो बाउंड्री। सिमिलरली यही बात हमारी बॉटम और टॉप विंडो बाउंड्रीज के लिए भी एप्लीकेबल होती है। अगर ये मान लीजिए हमारी बॉटम विंडो बाउंड्री है और क्लिपिंग विंडो इसके इस तरफ है, तो यानी इस विंडो बाउंड्री के जो इस तरफ होगा दैट इज कॉल्ड एज इनसाइड द बॉटम विंडो बाउंड्री, और जो इसके अपोजिट यानी इस तरफ होगा दैट विल बी कॉल्ड एज आउटसाइड द बॉटम विंडो बाउंड्री। फॉर एग्जाम्पल फिर से देखिए, पॉइंट J इज इनसाइड द बॉटम विंडो बाउंड्री एंड पॉइंट I इज आउटसाइड द बॉटम विंडो बाउंड्री। सिंपल कैलकुलेशन। और आप देख सकते हैं कि I और J दोनों ही हमारी क्लिपिंग विंडो के अंदर नहीं है। तो अभी लेकिन हम बात किसके टर्म्स में कर रहे हैं, हम एक विंडो बाउंड्री के टर्म्स में बात कर रहे हैं कि इनसाइड और आउटसाइड क्या होगा। तो बॉटम विंडो बाउंड्री से पॉइंट J उस तरफ है जिस तरफ क्लिपिंग विंडो है, इसलिए वो इनसाइड है, और I उसके अपोजिट साइड में है तो वो आउटसाइड है। सिमिलरली लुक फॉर द टॉप विंडो बाउंड्री। क्लिपिंग विंडो किस तरफ है, इस तरफ है, और ये उसका अपोजिट साइड है, तो हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट A इज इनसाइड द टॉप विंडो बाउंड्री, पॉइंट L इज इनसाइड द टॉप विंडो बाउंड्री, पॉइंट D इज आउटसाइड द टॉप विंडो बाउंड्री। तो दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ वेरियस विंडो बाउंड्रीज। Now let us talk about how we can say about the line. Now look at the various lines given this particular picture and let us understand whether the line is going from inside to outside or outside to inside. There are two things, okay? Now look at this particular line from I to J. Okay, I am just taking because कि I जो है वो J से पहले आता है, तो हम एज्यूम करते हैं कि भाई जो लाइन है हमारी वो I से लेके J की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि लाइन IJ है वो कहां से कहां जा रही है, तो देखिए उसके बारे में क्या कहा जाएगा। लाइन IJ इज गोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द बॉटम विंडो बाउंड्री। देखिए IJ कहां से, अगर हम I से J की तरफ जाते हैं तो हम कौन सी विंडो बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, बॉटम विंडो बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं। तो बॉटम विंडो बाउंड्री के टर्म्स में हम ये कहेंगे कि लाइन IJ इज गोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। वहीं अगर लाइन IJ के बारे में हम बात करते हैं लेफ्ट विंडो बाउंड्री के टर्म्स में, तो हम क्या बोलेंगे कि लाइन IJ इज गोइंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द लेफ्ट विंडो बाउंड्री। ये लाइन फिर से एक बार आप दोबारा से रिपीट करके सुनिएगा कि कहां से कहां लाइन जा रही है। अगर लाइन I से लेके J तक जा रही है तो आप देखिए कि आप किसी भी विंडो बाउंड्री को किस डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं, इनसाइड से आउटसाइड या आउटसाइड से इनसाइड। फिर से बता रहा हूं, लाइन IJ जो है वो आउटसाइड टू इनसाइड जा रही है विद रिस्पेक्ट टू बॉटम विंडो बाउंड्री, और इनसाइड टू आउटसाइड जा रही है विद रिस्पेक्ट टू द लेफ्ट विंडो बाउंड्री। लुक एट द लाइन KL. Since we assume that कि K comes before the L, तो we are assuming that कि line is going from K to L. Now this particular line is going from where to where? It is going from inside to outside with respect to the right window boundary. ये right window boundary में inside to outside travel कर रही है। Next is, let us talk about this line GH. If a line is going from G to H, we will say that this line is going from inside to outside of the right window boundary and outside to inside of the bottom window boundary. Remember this thing. Listen to it again how it is defined. कि any line if it is crossing any boundary, then we have to check it is going from inside to outside or from outside to inside. Next thing that we will talk about is called as the region code. Since you can see that this clipping window and the infinite extension, this is called as the infinite extension of the right window boundary. This is called as the infinite extension of the left window boundary. This is called as the infinite extension of the top window boundary, and this is called as the infinite extension of the bottom window boundary. Now, by making all these extensions, we divide the overall region into 9 parts. This is, you can say, region 1. This is region 2, region 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So you can see that every clipping window divides the whole space into 9 regions. Region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now
each and every region can be given a region code. A region code is a 4-bit code. Remember, it is a 4-bit code and the 4 bits are T, B, R, L. ध्यान रखिए, the 4 bits are T, B, R, L. T here represents whether a particular region is on the top side of the window boundary. B said whether it is on the bottom side of the window boundary. R says whether it is on the right of the window boundary, or you can say right of the clipping window, or whether it is L says whether it is left hand side of the clipping window. Right? Now we can take a small example. Look at this particular region. Here it is given. The very set is given. See, you can see here. Now, look at this particular thing. Here they are saying that this particular region is having the region code 1001. Now, what is happening here? See, why first one is 1? Because top, yes, this region is on top. So you can see that कि ऊपर वाले जो तीनों रीजन्स हैं, तीनों की टी बिट हमने क्या सेट कर रखी है? 1 सेट कर रखी है. और तीनों की जो बॉटम बिट है, यानी सेकंड बिट जो बी बिट होती है, वो कितनी सेट कर रखी है? 0 सेट कर रखी है. तो फर्स्ट 2 बिट हमें टॉप और बॉटम बताती हैं. सिंस यू कैन सी दैट कि जो ऊपर के तीनों रीजन्स हैं वो क्लिपिंग विंडो के ऊपर की तरफ होते हैं, इसलिए उनकी टी बिट 1 है और बी बिट जो है वो 0 है. सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं कि जो इस पार्टिकुलर सेकेंड रो में जो रीजन्स आ रही हैं उन सबकी टॉप और बॉटम दोनों ही बिट्स हमारी क्या आने वाली हैं? दे आर कमिंग आउट टू बी 0 0, मीन्स दे विल रिमेन 0. ओके, क्योंकि वो ना तो ऊपर है और ना ही नीचे है. सिमिलरली आप नीचे वाले तीनों रीजन्स को देख सकते हैं. इनकी टॉप बिट जो है वो कितनी है? 0 है, मगर बॉटम बिट जो है वो कितनी है? 1 है. ठीक है, विच मीन्स दैट कि ये रीजन दैट इज 7, 8 और 9, ये तीनों ही रीजन्स जो हैं वो क्लिपिंग विंडो के नीचे की तरफ है, बॉटम साइड में है. इसी तरह आप बाद वाली दोनों बिट्स देखिए. दे टॉक अबाउट द राइट एंड लेफ्ट. ये वाला रीजन जो है, ये आर बिट देखिए 0 है, मतलब ये रीजन क्लिपिंग विंडो के राइट में नहीं है, ये क्लिपिंग विंडो के कहाँ है? लेफ्ट में है. तो इसलिए आर बिट 0 रहेगी और लेफ्ट बिट जो है वो कितनी रहेगी? 1 रहेगी. नाउ यू कैन चेक ऑल द 3 रीजन्स 1, 2 एंड 3, मतलब ये 1, 2, 3, इन तीनों रीजन्स को देखिए. ये तीनों ही रीजन्स क्लिपिंग विंडो के लेफ्ट में है, क्लिपिंग विंडो से लेफ्ट में है. तो इसलिए इनकी जो आर बिट है वो 0 है और जो लेफ्ट बिट है वो किसके बराबर सेट है? 1 के बराबर सेट है. सिमिलरली आप इन तीनों रीजन्स को देखिए, ये वाली और ये वाली, ये ना तो लेफ्ट में है और ना ही राइट में, इसलिए इनकी जो आर और एल दोनों बिट्स हैं वो किसके बराबर सेट है? 0 0 के बराबर सेट है. नेक्स्ट इज ये तीनों रीजन्स देखिए, 1, 2 और 3. इन तीनों में देखिए आर बिट 1 है. क्यों? क्योंकि ये तीनों ही रीजन्स क्लिपिंग विंडो के राइट में है. ये तीनों ही रीजन्स क्लिपिंग विंडो के राइट में है, तो इसलिए आप देखेंगे ये 1, राइट बिट हमारी 1 के बराबर है, लेफ्ट बिट हमारी 0 के बराबर है. यहां भी देखिए 1 0, यहां भी देखिए 1 0. इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? हर एक पार्टिकुलर रीजन को एक रीजन कोड असाइन कर सकते हैं. ठीक है, इसको असाइन करने का एक लास्ट कैलकुलेशन, एक छोटा सा तरीका और है जो डिपेंड करता है किसके ऊपर? साइन बिट के ऊपर. रीजन कोड रीजन को असाइन किया जाता है, लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कैलकुलेशन के दौरान तो आपको किसका रीजन कोड निकालना होता है? आपको रीजन कोड निकालना होता है किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट का, किसी भी पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट का. और हम किसी भी पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट को, किसी भी पॉइंट को वो रीजन कोड असाइन करते हैं जिस विंडो में कि वो फॉल कर रहा है. जैसे आप देखिए हमारे पिछले एग्जाम्पल में हमारे पास एक पॉइंट था, दिस पॉइंट जे. अब जे किस पार्टिकुलर रीजन में फॉल कर रहा है? इस रीजन में फॉल कर रहा है. तो जे का रीजन कोड क्या होगा? जे का रीजन कोड होगा दिस वन, विच इज 0 0 0 0 0 1. तो ये जे का रीजन कोड होगा. अब आई कहां फॉल कर रहा है? आई देखिए आप इस नीचे वाले, मतलब नीचे वाले तीनों रीजन में से बीच वाले रीजन में फॉल कर रहा है, तो उसका जो रीजन कोड होगा दैट विल बी 0 1 0 0. इस तरह से हम इसको रीजन कोड असाइन करते हैं. नॉर्मली ये रीजन कोड्स जो असाइन किए जाते हैं वो साइन बिट के हिसाब से किए जाते हैं. यू नो दैट एक नेगेटिव नंबर जो है उसका साइन बिट कितना होता है? उसका साइन बिट वैल्यू 1 होती है और एक पॉजिटिव नंबर की साइन बिट वैल्यू जो है वो 0 होती है. इन द नेक्स्ट
lecture we will again start with this, and we will try to understand how we can give the region codes based on the sign bit. Thank you.